everyone, welcome back to my channel that is Beyond Dentistry. Today I'm Dr. Akanksha Gupta is again new video that we have on the topic of aminogenesis imperfecta. I always told you कि first किसी चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके words को समझना पड़ता है. So in this we have aminogenesis. Aminogenesis is a process of formation of enamel. While imperfecta means there is something which is imperfect. Okay, aminogenesis imperfecta. So this is very rare. Okay, this is rare disease not found in patients. Okay, second we have it is a hereditary. So basically hereditary is passing one disease to another. Like अगर genes के through होती है, genetics होती है, genetic होती है like एक person से दूसरे person से जा रही है, one generation से second generation से जा रही है, that is hereditary. Okay. Now we have a classification. So classification which is given by Bintop classification. So basically what is type 1? Type 1 we have hypoplastic. Okay, type 2 we have hypomaturation. And type 3 we have hypocalcified. Okay, so hypoplastic is very common, that is we have 60 to 70%, while hypomaturation is about 20 to 25%, and while hypocalcified is somewhat like 7%. So already aminogenesis imperfecta is already it is a rare disease, while hypocalcified is very rare. Okay, because this is have a 7%. So white cop is again divided these part in again further divide. Okay, उसने क्या किया था, इनको और further divide कर दिया था. ठीक है, वो हमारे point of view से नहीं है. ठीक है, we have now we have hypoplastic. So hypoplastic in this there is a defect in the enamel. Okay, या फिर enamel हमारा form नहीं हुआ है, in the defect of enamel. Okay. Now while in hypomaturation, what is defect in size of hypoapatite crystals. जब हमारे hypoapatite crystals बन रहे होते हैं उसके size में defect होता है कोई. ठीक है. Now we have hypocalcified. Hypocalcified there is defect in mineralization. कि अगर हमारी mineralization जो है वो proper नहीं हुई है उसकी वह further clinical features में देखेंगे क्या defect आते हैं. ठीक है, सो बेसिकली हमारा 3 टाइप का हो गया. फर्स्ट वन वी हैव हाइपोप्लास्टिक, सेकंड वी हैव हाइपोमैचुरेशन, थर्ड वी हैव हाइपोकैल्सिफाइड. व्हाइल हाइपोप्लास्टिक इज डिफेक्ट इन द इनेमल फॉर्मेशन और इनेमल नॉट properly formed. Second we have enamel maturation, hypomaturation in which we have defect in the size of hypocapitite crystals formation. crystals क्या होता है, जब हमारा enamel बन रहा होता है तो इसमें हमारे होते हैं hypoapatite crystals, which उसमें क्या होता है, there is a differ in the size. Okay, now we have a hypocalcified in this we have defect in mineralization, proper mineralization नहीं हो रही है उसकी वजह से. Okay, so this is all about our classifications. So now we have etiology. So etiology में क्या हो रहा है कि there is अल्टरेशन ऑफ जीन, हमारे जीन में अल्टरेशन होता है. तो जीन कौन से अल्टर होते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन और मैच्योरेशन ऑफ इनेमल. ठीक है, लाइक जो जीन हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारा इनेमल मैच्योर होगा या फॉर्म होगा उस जीन में अल्टरेशन आ जाती है. दिस इज ड्यू टू दी etiology. और वी हैव सम न्यूट्रिशनल डिफेक्ट और ट्रॉमा, इसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि हमारा अमीनोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो सके. बट मोस्ट कॉमन है हमारा जेनेटिक. ठीक है, नाउ वी हैव अ क्लिनिकल फीचर्स. नेक्स्ट वी हैव क्लिनिकल फीचर्स. सो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, सबसे पहले जो पेशेंट है उसके जो टूथ होंगे उसका कलर होगा या तो वाइट होगा, वाइट से ऑफ वाइट से येलोइश से ब्राउन. ठीक है, दीज कलर आर वी सी इन दिस अमीनोजेनेसिस इम्परफेक्टा. ओके, अब क्या हो रहा है कि हमारा जो हाइपोप्लास्टिक होता है, अब हाइपोप्लास्टिक में क्या हो रहा था हमारा, देयर इज लैक ऑफ इनेमल, लाइक इनेमल फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, इनेमल प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहा था.
अब जब इनेमल प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा तो हमारे जो इनेमल की वजह से प्रॉपर फॉर्म नहीं हो रहा है तो हमारे टूथ है वो शॉर्ट हो जाएंगे। अब टूथ शॉर्ट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, देयर इज डिफिकल्टी इन मैस्टिकेशन और ऑक्लूजन में डिफेक्ट आएगा। ओके अब क्या हो रहा है कि वी हैव अ हाइपोकैल्सिफाइड। हाइपोकैल्सिफाइड में क्या हो रहा था, दिस देयर इज लैक ऑफ मिनरलाइजेशन। अब लैक ऑफ मिनरलाइजेशन की वजह से क्या होगा, हम अपना जब इंस्ट्रूमेंट इस टूथ पे लगाएंगे या इनेमल पे लगाएंगे तो इट इजीली चिप्ड ऑफ और स्क्रैप्ड ऑफ। नॉर्मली हमारे इनेमल पे अगर लगाएंगे तो इट्स नॉट प्रॉपर नहीं, प्रॉपरली हमारा स्टिक रहेगा, बट इन अमीनो जैसे इम्परफेक्टा में जब हम लगाते हैं तो इट इजीली स्क्रैप्ड ऑफ। ठीक है, और वी हैव इजीली स्क्रैप्ड ऑफ हो जाएगा। एंड वी हैव क्या होता है कि जो सीक्वेंस है लाइक टूथ का जो इरप्शन सीक्वेंस है वो अल्टर हो जाता है। अब उस अल्टर होने की कभी मैंडिबुलर टूथ आ रहा है हमारा, कभी मैक्सिलरी टूथ आ रहा है, उसकी वजह से वी सी दी एंटीरियर ओपन वाइट। ठीक है, अब हमारा इनेमल फॉर्म नहीं हुआ था तो उसमें क्या हो गया, इनेमल फॉर्म नहीं हो रहा है तो देयर इज अ सेंसिटिविटी। अब डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा तो डेंटिन में एक्सप्लोर टू सेंसिटिविटी। सो वी हैव अ एंटीरियर ओपन वाइट। ओके वी हैव दिस क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, एंटीरियर ओपन वाइट, वी हैव शॉर्ट टूथ, वी हैव सेंसिटिविटी, and we have aesthetically it is brown in color. Okay, this is are seen in the clinical features. So we have other name of aminogenesis imperfecta which we have are hereditary brown enamel, hereditary enamel dysplasia, hereditary brown opalescent teeth. Okay, these are other name. और brown teeth क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे clinical features में हमें appearance दिख रही थी brown color की, उसकी वजह से we have hereditary brown dysplasia enamel. ठीक है, enamel brown हो गया तो enamel brown enamel. Okay, अब now next we have a radiographic features. अब radiographic features में क्या हो रहा है हमारा कि सबसे पहले जब हम कोई पेशेंट, हमारा अमीनोजेनेसिस का पेशेंट आया हमारे पास, हमने उसका रेडियोग्राफ लिया तो रेडियोग्राफ में देखेंगे सबसे पहले देयर इज लॉस ऑफ कॉन्टूर। सो लॉस ऑफ कॉन्टूर होगा लाइक जो हमारा क्राउन इनेमल होगा विच इज स्क्वायर इन शेप। ओके, समवट लाइक स्क्वायर इन शेप विच इज टू द मीजियल टू द डिस्टल, लाइक डिस्टल और मीजियल जो साइड है वो स्क्वायरिश दिखेगी हमारी। ठीक है, वी हैव अ इनेमल। इनेमल में क्या होगा, इनेमल या तो एब्सेंट होगा या फिर उसमें थिन ओपेक लेयर दिखेगी, हमें एक पतली सी लेयर दिखेगी, या तो एब्सेंट होगा और कप्स कस्प जो है हमारे वो एब्सेंट होंगे। ठीक है, लाइक बेसिकली हमें दिखेंगे नहीं। नेक्स्ट वी हैव पल्प चैम्बर। पल्प चैम्बर में क्या होगा, इफ वी हैव अ एडवांस लीजन, अगर हमारा एडवांस केस है, कंडीशन है, तो देयर इज ऑब्लिटरेशन ऑफ पल्प चैम्बर, पल्प चैम्बर की ओपनिंग दिखेगी हमें। ठीक है, और वी हैव क्या होगा कि जब हम रेडियोग्राफिक देखेंगे तो इट इज डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट द डेंटिन और इनेमल, क्योंकि ये दोनों एक ही लेयर में आ जाएंगे, एक ही शेड देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमें डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि हाइपो वी हैव थ्री टाइप्स दैट वी हैव, हाइपोप्लास्टिक, हाइपोमेचुरेशन एंड हाइपोकैल्सिफाइड। अब हाइपोप्लास्टिक में हमें क्या दिखेगा, हमें इनेमल जो है पिटेड इनेमल दिखेगा। ठीक है, लाइक सम अपीयरेंस में सब जगह हमें पिटेड अपीयरेंस दिखेगा, पिटेड इनेमल दिखेगा। इन वी हैव हाइपोमेचुरेशन में, हमें हाइपोमेचुरेशन में क्या दिखेगा कि देयर इज मॉथ ईटन अपीयरेंस, इनेमल का जो होगा मॉथ ईटन अपीयरेंस होगा। इन हाइपोकैल्सिफाइड में क्या दिखेगा हमें कि जो हमारा जो इसमें जो इनेमल है वो हमारा लेस रेडियोलूसेंट होगा देन नॉर्मल से। ठीक है, दिस इज और आर क्लिनिकल फीचर, ऑल आर रेडियोग्राफिकल फीचर विच वी अप्रिशिएट इन द रेडियोग्राफिक। So now we have histological features. Okay, so histological features in which we have three types, that is we have hypoplastic, hypomaturation and hypocalcified. So first one is hypoplastic. In hypoplastic we see there is a defect in the differentiation and viability of aminoblast. ठीक है, अमीनोब्लास्ट में डिफेक्ट होगा। ठीक है, टाइप 2 में हमें क्या दिखेगा, देयर इज डिफेक्ट इन दी इनेमल मैट्रिक्स और वी हैव
सॉरी ऑर्गेनिक मैट्रिक्स एंड इनेमल डिपोजिशन, उसमें डिफेक्ट दिखेगा ऑर्गेनिक मैट्रिक्स. Okay, now we have class 3. In class 3 we see the defect in enamel rod or enamel sheet. Okay, enamel rod and enamel sheet. So basically this is what we have. There is defect. In class 1 we see the defect in aminoblast, and class 2 type 2 we have organic matrix or enamel deposition. Class 3 we have enamel rod defect in enamel rod and enamel sheet. Okay, so this is all about histological features. Now we have in the treatment part. तो ट्रीटमेंट में क्या होता है? ट्रीटमेंट, सो ट्रीटमेंट नो बेसिकली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है. बट क्लिनिकल फीचर्स में हम देख रहे थे कि ब्राउन टीथ हो रहा है तो हम उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी दे देंगे. कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट वाइल वी गिव दी फेशियल वीनर देकर कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट हो जाएगा. और वी हैव डिसेंसिटाइजिंग एजेंट दे देंगे. जिन पेशेंट्स में हमारा डेंटिन एक्सपोज हो रहा है तो सेंसिटिविटी हो रही है, उसमें हम डिसेंसिटाइजिंग एजेंट दे देंगे. एंड वी हैव ओवरडेंचर, जिस पेशेंट की क्राउन लेंथ जो छोटी थी उसकी वजह से रेस्टोरेशन में प्रॉब्लम हो रही थी तो हम उसमें ओवरडेंचर दे देंगे, ठीक है. दीज आर 3 फैक्टर विच इज गिवन इन दी ट्रीटमेंट ऑफ अम्यूनोजेनेसिस इम्परफेक्टा. So this is all about our topic which is immunogenesis imperfecta. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.